दिखाई दे रहा है वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला? यस सर। ठीक है। कितने लोगों ने मेरा क्लास अटेंड किया हुआ था वोल्टेज रेगुलेशन का, जिसमें कि मैंने ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट बताया था? हल्का हल्का थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है? सर अ, ट्रांसफॉर्मर में। नहीं नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन के वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने इसको स्टार्ट कर दिया था पिछले लेक्चर में ही। ठीक है। यस सर। ठीक है, मैं एक बार इसको जो है रिवाइज, फिर से रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ दिस टुडे आवर टॉपिक इज वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन के अंदर वोल्टेज रेगुलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पॉइंट। एंड टुडे आवर टॉक going through first of all, I define the voltage regulation. Second, I will discuss the method to determine voltage regulation. And there are three methods for finding the voltage regulation we are widely used. First is synchronous impedance method for the voltage regulation calculation. Second is the MMF method is used for the voltage regulation calculation. And finally, I will discuss about the zero power factor method for the voltage regulations. ठीक है। And first of all, I will define and what is mean by voltage regulation. Voltage regulation VR is defined as the no load voltage minus full load voltage to full load voltage divided by 100. 100 is divided for the finding the percentage. And here I define all term used in voltage regulation formula. And this is the where VFL is the full load terminal voltage, and ENL is equal to the EF. EF is the no load terminal voltage, internal voltage at a rated speed, and both are taken at a rated speed. When the load is removed without changing the field current, for lagging power factor, VR is fairly positive. If we are talking about lagging power factor, the voltage regulation around small positive. If our machine is working on a unity power factor, then the voltage regulation is small positive, and our machine is working at a leading power factor, then the voltage regulation must be negative. So these are the some terminology which is widely used, and we are keeping first option is the machine generated power where current is lagging with terminal voltage. And if we are talking about the unity power factor, if our machine is working at a unity power factor, that means terminal voltage and current, armature current in a same phase, that condition is known as unity power factor. If current is leading with the terminal voltage, then this case is known as leading power factor. If machine is working at a lagging power factor, the voltage regulation is fairly positive. If machine is working as a unity power factor, then voltage regulation is positive, small positive. And if power factor is leading, then the voltage regulation is negative. These are the basic concept about the वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, सुनाई दे रहा है सारे लोगों को? हेलो? हाँ सर, सुनाई दे रहा है। ठीक है। सेकेंड कंसेप्ट इज द वोल्टेज रेगुलेशन बाय द सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड। एंड फर्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड। इन ए सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड वी आर परफॉर्मिंग
थ्री टेस्ट या the finding the voltage regulation following data are required. First data is resistance of the armature or stator winding per phase basis resistance of the armature winding या stator winding are required for the voltage regulation calculation. Second is we have to perform open circuit test and short circuit test, and how we are performing open circuit test and how we are performing short circuit test. I already discussed about all these things. ठीक है. And resistance of the armature winding can be finding through the resistance of the armature and the stator winding per phase can be determined by using voltmeter ammeter method by the Wheatstone bridge. This is the AC bridges which is widely used for the measurement of the resistance. Wheatstone bridge are widely used for the measurement of the resistance, and with the help of these bridges we finding the resistance of the armature winding. Next, the effective stator winding resistance is always greater than DC value due to the skin effect. Already I discussed about the skin effect. In this effect, the AC current, maximum current will flowing through the conductor of surface of the conductor. Minimum current will flowing through the center of the conductor, and causes the effective area of the current will reduces. If area is reduces, the R is increases. If R is increases, then the losses should be increased. And if we are finding armature resistance through the DC test, yeah, if we are finding DC resistance, then it is multiplied by 1.3 for the finding of AC resistance. ठीक है. AC resistance may be taken approximately 1.2 to 1.3 times the DC resistance. DC resistance, if we measure DC resistance, then it must be converted into AC resistance by the multiplying of the 1.2 to 1.3. ठीक है. यहां तक सुनाई दे रहा है? यहां तक क्या हुआ है? हेलो. यस सर. यहां तक समझ में आया यस बेटा? सर। ऑलरेडी जी. ये सारी चीजें मैंने बता दिया था, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए फिर से रिवाइज कर रहा हूं मैं. अब इसके बाद ओके. ओपन सर्किट टेस्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन फिर से मैं बता देता हूं. देखिए, ये हमारा जो है स्टेटर वाइंडिंग है और ये जो है फील्ड वाइंडिंग है. स्टेटर Yes, वाइंडिंग sir. पे हमने ओपन सर्किट टेस्ट में क्या किया है कि दो टर्मिनल के बीच में, क्योंकि पर फेज वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है. ठीक है ना. पर फेज रेजिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है. तो इस केस में हमने क्या किया, यहाँ पे जो है दो फेज के बीच में एक वोल्टमीटर हमने कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहाँ पे डीसी सप्लाई हमने कनेक्ट किया हुआ है, और रेजिस्टेंस को इंक्रीज और डिक्रीज करके फील्ड करंट को जो है हम इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं. तो सबसे पहले इसमें कौन कौन सा जो है स्टेप हमने फॉलो किया हुआ है. द जनरेटर इज टर्न एट ए रेटेड स्पीड. जनरेटर को जो है जिस प्राइम मूवर से हम रोटेट कर रहे हैं, तो रेटेड स्पीड पे हम इसको रोटेट करेंगे, रेटेड स्पीड पे हम इसको रन करेंगे. सेकेंड जो है, टर्मिनल आर कनेक्टेड फ्रॉम द ऑल लोड एंड फील्ड करंट इज सेट टू बी जीरो. अब क्या होगा कि टर्मिनल को जो है टर्मिनल से सारे लोड को डिस्कनेक्ट कर देंगे और फील्ड करंट को जो जीरो सेट कर देंगे. दूसरे स्टेप, एंड द टर्मिनल वोल्टेज इज मेजर एट ईच स्टेप. रेजिस्टेंस को जो है स्टेप वाइज हम डिक्रीज कर रहे हैं. तो जैसे स्टेप वाइज हम डिक्रीज करेंगे, सो सिमिलरली जो है IF का वैल्यू स्टेप वाइज इंक्रीज होगा, और इसी के प्रोपोर्शनल में यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज जो है हमारा इंक्रीज होगा. ठीक है. तो हमने जो है जिस तरह से हमारा IF का वैल्यू चेंज हो रहा है, IF का रीडिंग हमने लिया, सेम टाइम जो है VT का रीडिंग लिया. ठीक है. लास्ट जो है, इट दस पॉसिबल टू ऑब्टेन ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जनरेटर EF या VT वर्सेस IF. अब इसमें क्या करेंगे
कि टर्मिनल वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में जो है ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्टेप पे जो है हमने जो रीडिंग लिया हुआ है बीटी का और आईएफ का, उसको जो है हम एक्स और वाई ग्राफ एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे हमने जो है यहाँ पे, एक मिनट देखिए, ओपन सर्किट टेस्ट हमने परफॉर्म किया हुआ है। ये हमारा जो है एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। टर्मिनल वोल्टेज को जो है हमने वाई पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, और एक्स एक्सिस पे जो है हमने फील्ड करंट को रिप्रेजेंट किया हुआ है जो कि एम्पियर में है। और यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज को जो है हमने वोल्ट में रिप्रेजेंट किया हुआ वाई एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, अब ग्राफ जो है हमारा जैसे जैसे हमने जो है आईएफ का वैल्यू बढ़ाया है, सिमिलरली ग्राफ जो है हमारा लिनियर इंक्रीज हुआ है यहाँ तक। इसके बाद जो है कोर के अंदर मैग्नेटिक सिचुएशन की वजह से जो है ये हमारा लिनियर के बजाय जो है नॉन लिनियर ग्राफ यहाँ से जनरेट हो रहा है इस पॉइंट तक। ठीक है, तो ये जो है दिस इज द नोन एज ओपन सर्किट टेस्ट। अब इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म किया हमने? फील्ड करंट को इंक्रीज किया। सपोज जो है स्टार्टिंग में हमने फील्ड करंट को जीरो सेट किया, तो जीरो सेट किया तो उस केस में जो है टर्मिनल वोल्टेज हमने फाइंड आउट किया। तो टर्मिनल वोल्टेज जो है हमारा सपोज जो है अगर यहाँ पे आई एफ जीरो है तो हमारा वी टी भी जीरो जीरो जनरेट हुआ। ठीक है, इसके बाद जो है रेजिस्टेंस को हमने डिक्रीज किया तो आई एफ का वैल्यू हमारा इंक्रीज हुआ। जैसे सपोज जो है आई एफ ए फील्ड करंट पे जो है जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज जनरेट हुआ वो भी ये जनरेट हुआ। तो ये ग्राफ जो है यहाँ तक हमारा रीच हुआ। सिमिलरली जो है बहुत सारे हमने रीडिंग लिया, फाइनली जो है आई एफ बी फील्ड फील्ड करंट आई एफ बी तक जो है इसको इंक्रीज किया। तो इस केस में जो है हमारा जो रेटेड वोल्टेज जनरेट हुआ। ठीक है, और इस ग्राफ को जो है हमने प्लॉट किया। तो दिस इज द नोन एज ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट में कुछ नहीं करना है, सारे टर्मिनल को ओपन कर देना है, दो टर्मिनल के बीच में जो है वोल्टमीटर लगा देना है, और आई एफ के वैल्यू को जो है जीरो से मैक्सिमम तक रेटेड वैल्यू तक जो है इंक्रीज करना है। और अलग अलग पॉइंट पे जो है हमको रीडिंग लेना है, आई एफ का रीडिंग लेना है और बी टी का रीडिंग लेना है। यहाँ पे हमने जो है आई एफ और बी टी का रीडिंग अलग अलग पॉइंट पे लिया है यहाँ से। तो ये जो है हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? हेलो? हाँ सर। ठीक है, शॉर्ट सर्किट यस के केस सर। में मैंने बताया था सेम प्रोसीजर होगा, सेम अरेंजमेंट होगा। अब इसमें क्या करेंगे कि दो फेज को जो है हम शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट कर देंगे, यहाँ से जो है आई एफ का वैल्यू को इंक्रीज करेंगे जीरो से। ठीक है, अब जीरो से इंक्रीज करेंगे तो इस केस में जो है आई एस सी का वैल्यू बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे हमने जो है आई एफ हो गया, ये जो है हमारा वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है आई एस सी को रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब इसमें जो है जैसे हमने आई एफ का वैल्यू को जो है बढ़ाना शुरू किया, यहाँ से हमने बढ़ाना शुरू किया, तो हमारा जो है आई एस सी भी बढ़ना शुरू हुआ। ठीक है, तो ये जो है ग्राफ हमारा लिनियर जनरेट होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, अब इसके थ्रू जो है ये वैल्यू हम रेटेड करंट और रेटेड वोल्टेज का वैल्यू ओपन सर्किट टेस्ट में जो है रेटेड रेटेड मतलब फील्ड करंट के उस वैल्यू को जो है हम फाइंड करते हैं जिस पे जो है रेटेड वोल्टेज जनरेट होता है। ठीक है ना, ओपन सर्किट टेस्ट में हमको क्या करना है कि फील्ड करंट की उस वैल्यू को फाइंड आउट करना है जिस पे हमारा रेटेड वोल्टेज जनरेट होगा, तो इसको हम बोलेंगे आई एफ बी। ठीक है, दूसरा जो है ठीक है सर। दूसरा जो है रेटेड करंट इसी पे जनरेट होगा। देखिए यहाँ पे हमारा रेटेड वोल्टेज जनरेट हो गया, और यहाँ पे जो है सेम लाइन पे, यहाँ पे सेम लाइन पे जो है सेम लाइन पे रेटेड शॉर्ट सर्किट जनरेट हो गया और रेटेड वोल्टेज हमारा जनरेट हो गया। इस चीज़ को हमको ध्यान में देना है। और सीधे सीधे अब यहाँ से जेड का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जेड का फाइंड आउट करने का तरीका जो होता है आर ई स्क्वायर प्लस एक्स एस स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे जो है जेड का वैल्यू कहाँ से आएगा? जो हमारा वी ए है या ई एफ है, नो लोड टर्मिनल वोल्टेज, और डिवाइड बाई जो है शॉर्ट सर्किट करेंट। ठीक है, आई एस सी और नो लोड वोल्टेज के थ्रू जो है ईएफ के थ्रू हम यहाँ पे सीधे सीधे जेड का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब फिर इसके बाद में एक्स एस अनसेचुरेटेड अगर फाइंड आउट करना है तो जेड स्क्वायर माइनस
RA स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो R का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो जो है DC टेस्ट के थ्रू जो है हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, DC टेस्ट क्या होता है बाद में कभी टाइम मिलेगा तो इसको मैं बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ से यक्स यस को अगर फाइंड आउट करना तो ये बाई ISCA या एक मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे EF मैंने बता दिया था, नो लोड करंट, नो लोड वोल्टेज। ठीक है ना, नो लोड वोल्टेज और डिवाइड बाय जो है ये शॉर्ट सर्किट ISC जो है हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से जो है हमारा ये आ जाएगा ये एक्सेस अनसेचुरेटेड आ जाएगा। अब इसमें जो है एक और प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर एक्सएस की बात करें और आरए को कंपेयर करें तो आरए का वैल्यू जो है काफ़ी लेस होता है। लेस होने के केस में जो है बहुत जगह अभी मैंने बताया था जिस समय जो है सिंक्रोनाइजिंग पावर और सिंक्रोनाइजिंग टार्क कोफिशिएंट बता रहे थे उस समय आर के वैल्यू को नेग्लेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधे सीधे जो है यक्स यस अनसेचुरेटेड का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, नो लोड टर्मिनल वोल्टेज और जो है हमारा शॉर्ट सर्किट करंट के थ्रू जो है इनिशियल शॉर्ट सर्किट करंट के थ्रू जो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे इस ग्राफ में मैंने दिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? पिछले लेक्चर में मैंने नोट कराया था, नोट किए थे आप लोग ये सारे फार्मूले और सारे ग्राफ? हेलो, यस सर। पिछले लेक्चर में नोट किए थे आप लोग? अगर नोट नहीं किए हैं तो एक बार इसको राइट कर लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, ठीक है सर, लिख रहा हूँ। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारा चीज। एक मिनट, ये सर्किट डायग्राम बना लो, पहले ओपन सर्किट का सर्किट डायग्राम बना लो, फिर इसके बाद में शॉर्ट सर्किट का बना लो। एक ही डायग्राम बना लो लेकिन उसको यहीं पे दिखा देना कि एक को जो है ओपन किया गया है, दूसरे को शॉर्ट किया गया है। ओके, अब जब दोनों ठीक है। सर्किट बन जाए तो इसके बाद में जो है ये फार्मूले वाला जो है PPT मैं ओपन करूंगा उसको लिख लेना आप लोग। ठीक है, ओके सर, लिख करके फटाफट बना करके मुझे बताओ। ठीक है सर।
हो गया? हो गया सर। हाँ सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा सारा कर लो, ठीक है। ये मेरा कॉलेज है। हम्म। यही जैसे हो कल का। हो गया? हाँ सर हो गया। यस सर, हाँ। हो गया। हो गया सर। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, 1 मिनट। अब फर्स्ट मेथड की बात करेंगे। वोल्टेज रेगुलेशन बाय द एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स मेथड के थ्रू जो है वोल्टेज रेगुलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में हमको बात करना है। तो दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड एम्पियर टर्न मेथड। दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड एम्पियर टर्न मेथड। क्या होता है, कभी कभी जो है एमएमएफ मेथड की जगह पे एम्पियर टर्न मेथड जो है क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो उस केस में जो है बहुत सारे बच्चों को जो है आते हुए भी जो है वो नहीं कर पाते हैं। तो यू must know about your its other name, like ampere turn method is also called. This method is based on a result of the open and short circuit test on a alternator. ये रिजल्ट जो है हमारा ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के जो है रिजल्ट पे बेस्ड होता है। फॉर अल्टरनेटर द फील्ड एमएमएफ is required to produce the normal voltage V on a full load is vector sum of the following। अब इसमें जो है क्या क्या होगा,
field MMF required to produce rated terminal voltage of the no load, rated terminal voltage of the no load, और फिर इसके बाद जो फील्ड MMF आर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ द आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, ये दो जो है, दो चीज़ों को जो है हमको फॉलो करना होता है। इसके बाद ऑन ए शॉर्ट सर्किट कंडीशन द फील्ड MMF रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस full load current, balance impedance drop and armature reaction, but the RA XL are very small due to the short circuit. The impedance drop can be neglected, hence the power factor on a short circuit almost zero, lagging and field MMF are used completely to overcome the demagnetizing effect of the armature reaction। ठीक है, यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपको लगेगा कि नई चीज़ें जो है समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ इसको जो है कैसे आसान भाषा में बताया जाएगा, उसके बारे में थोड़ा सा मैं देखता हूँ। देयर फॉर द डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर MMF ऑन ए फुल लोड इक्वल एंड अपोजिट टू द फील्ड MMF रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फुल लोड करंट ऑन ए शॉर्ट सर्किट। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर MMF, डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर MMF ऑन ए फुल लोड इक्वल एंड अपोजिट टू द फील्ड MMF रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फुल लोड शॉर्ट सर्किट, फुल लोड करंट ऑन ए शॉर्ट सर्किट। ठीक है, फुल लोड पे जो है जो MMF रिक्वायर्ड होगा, जो वैल्यू फुल लोड पे MMF का जो आएगा, ठीक है, डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर MMF ऑन ए फुल लोड, इसका वैल्यू जो है इक्वल और अपोजिट होगा MMF रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फुल लोड फुल लोड करंट ऑन ए शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो है जो फुल शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो है फुल लोड करंट के इक्वल एंड अपोजिट होगा। Procedure to draw the phasor diagram for the finding voltage regulation. The field current required to produce rated terminal voltage obtained from the OCC open circuit test। ओपन सर्किट टेस्ट के थ्रू जो है हम रेटेड टर्मिनल वोल्टेज को जो है फाइंड करेंगे, जो कि मैंने बताया था। दिस इज द डिनोटेड बाय IF नॉट। फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू circulate full load current obtained from the short circuit characteristics, this is donated by the IFA। ठीक है, IF नॉट और IFA जो है दो हमने करंट, फील्ड करंट फाइंड आउट किया, फील्ड करंट फाइंड आउट कर लिया हमने। ठीक है, हमने बताया था आपको कि सबसे पहले ओपन सर्किट टेस्ट जो परफॉर्म करते हैं तो उसमें जो है नो लोड टर्मिनल वोल्टेज हम फाइंड आउट कर लेते हैं, या रेटेड टर्मिनल वोल्टेज जो है हम फाइंड आउट कर लेते हैं ओपन सर्किट टेस्ट पे। और जिस फील्ड पे जो है रेटेड टर्मिनल वोल्टेज को हम फाइंड आउट करते हैं उस फील्ड करंट को जो है IF नॉट से जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ना। दूसरा जो है रेटेड करंट जो है फाइंड आउट करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट के थ्रू, और जिस फील्ड करंट पे जो है रेटेड करंट जनरेट होती है उसको जो है हम IFA नाम देते हैं। तो ये बात हमेशा दो चीज़ें याद रखना है आपको। IF नॉट जो है इस पे रेटेड टर्मिनल वोल्टेज होगा ओपन सर्किट टेस्ट के केस में, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के केस में जो है रेटेड करंट होगा IFA फील्ड करंट पे। IF नॉट पे जो है रेटेड टर्मिनल वोल्टेज जनरेट होगा ओपन सर्किट टेस्ट के केस में, लेकिन IFA जो है फील्ड करंट पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट के केस में जो है रेटेड करंट जनरेट होगा। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखना है। द अल्टरनेटर इज सप्लाइंग फुल लोड, देन द टोटल MMF इज वेक्टर सम ऑफ द IF नॉट एंड IFA। अब देखिए ये जो है ये फील्ड करंट उस समय जनरेट हुआ है जिस समय टर्मिनल वोल्टेज, रेटेड टर्मिनल वोल्टेज जो है जनरेट हुआ था ओपन सर्किट टेस्ट के केस में, तो उसको हमने IF नॉट से रिप्रेजेंट किया।
दूसरा जो है रेटेड करंट जनरेट हुआ था शॉर्ट सर्किट के केस में, उस फील्ड करंट को जो है आईएफए से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। और अल्टरनेटर का जो है टोटल अमाउंट जो होगा इन दोनों का अलजेब्रिक सम होगा या वेक्टर सम होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आई एफ नॉट हो गया, ये आई एफ ए हो गया, और इन दोनों का जो है वेक्टर सम जो है आई एफ आर रिजल्टेंट रिजल्टेंट जो है हमारा फील्ड करंट आ गया। ठीक है, तो अब इसमें जो जो एंगल आएगा 90+5 होगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब आई रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, एफ नॉट स्क्वायर प्लस एफ ए स्क्वायर प्लस 2 आई एफ नॉट आई एफ ए कास आई एफ नॉट एंड आई एफ ए। अब इसमें जो है हमने अलग अलग केस लिया हुआ है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री से लेस है, तो इस केस में जो है हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, the leading power factor the AB FA is drawn the angle इतना, and unity power factor AB is equal to FA drawn the at a right angle। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? हेलो, यस सर। हेलो, यस सर, यस सर। यहाँ तक थोड़ा बहुत समझ में आया? हम्म। हाँ सर। एक मिनट रुक जाइए आप लोग। अभी यहाँ से वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि वीटी का वैल्यू जो है हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज या नो लोड वोल्टेज या ईएफ का वैल्यू जो है ऑलरेडी हमने पता कर लिया ओपन सर्किट टेस्ट के थ्रू, और इसके थ्रू जो है रिजल्टेंट वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है अगर हम जो है हमको अगर वोल्टेज फाइंड आउट करना है, तो सीधे सीधे जो हमारा इम्पीडेंस आएगा, इम्पीडेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमारा जो है फुल लोड वोल्टेज आ जाएगा। तो नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड डिवाइड बाय फुल लोड इंटू 100 कर देंगे, जो फार्मूला ऊपर बताया था उसके थ्रू जो है वोल्टेज रेगुलेशन हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड मेथड जो है हमारा जीरो पावर फैक्टर मेथड है। अब जीरो पावर फैक्टर में कैसे करते हैं हम उसके बारे में थोड़ा सा टफ है। ठीक है, तो फिर मैं इसको थोड़ा सा और आसान बना करके नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें सारा थ्योरी ही है, तो थोड़ा सा मैं देखता हूँ और आसान भाषा में कुछ मिलता है तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा। तो आज जो है बस वाइंड अप करते हैं हम लेक्चर को। ठीक, किसी कोई दिक्कत है तो बताइए। हेलो, नो सर, नो सर, नो सर। ठीक है, एक मिनट मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ आप लोगों का।